उसने आदम के बनाने के बाद ये किया? Did he do that when Noah made the ark and there was a flood on earth? ये क्या तब किया जब नूहा ने वो जहाज बनाया और बाढ़ आ गई धरती पर? My dear beloved, मेरे प्यारो, if he scattered the inhabitants, और अगर उसने यहाँ उसमें रहने वाले को तीतर बीतर कर दिया, then man could not live on an earth that was upside down, could he? तो जो इंसान थे उस वक्त, तो जो धरती को उलट दिया था उसमें क्या वो रह सकते थे? So this is what the Bible is explaining us. और यही बात बाइबल हमको समझा रही है। From Job to Jeremiah, Genesis and Isaiah. और उत्पत्ति से लेके जोब से लेके आइजाया से लेकर, That the earth obviously had moved from its place. कि जाहिर सी बात है कि धरती अपनी जगह से सरक गई थी। That the people that lived on the planet then, और उस समय जो लोग वहां पर रहते थे, everything, everyone had come to an end. कि हर एक चीज उस वक्त समाप्त हो चुकी थी। And the Bible says, और बाइबल कहती है instead the inhabitants that were on earth, कि उस समय जो उस धरती पर रहने वाले थे, they were alive. वो जीवित थे। How can that be possible? ये कैसे संभव हो सकता है? How can they be alive? वो कैसे जीवित रह सकते हैं? Well, what could keep them alive? क्या चीज उन्हें जीवित रख सकती थी? My dear beloved, मेरे प्यारो, when God turned the earth upside down जब परमेश्वर ने धरती को उलट दिया and the inhabitants were thrown down, और जब उसमें जो रहने वाले थे वो नीचे गिरा दिए गए, and these inhabitants, how could they stay alive? और वो जो रहने वाले थे उसमें वो जीवित कैसे रह सकते They were थे? not human beings. क्योंकि वह इंसान नहीं थे, They were those fallen angels. और वो गिरे हुए फरिश्ते थे। And this is an interesting fact, beloved, और ये बहुत ही दिलचस्प सच्चाई है प्यारो, that the Bible tells us कि बाइबल हमको बतलाती है that when God turned the earth upside down, जब परमेश्वर ने इस धरती को पलट दिया, the angels whom he had already created, कि फरिश्ते जो उसने पहले से ही रचे थे, the angels who were already designated under the archangels, और इसी तरह से वो फरिश्ते जो वो मुख्य फरिश्तों के नीचे थे, they were the ones that were thrown with Lucifer. और लूसीफर के संग वो फरिश्ते भी फेंक दिए गए। And in Job chapter 38, if you will see, और आप अय्यूब की पुस्तक 38 में अगर आप देखेंगे, you will see with us और आप हमारे संग ये देखेंगे that the Bible says कि बाइबल हमको बतलाती है that the angels were created billions of years ago in verse 25. और 25 वचन में बाइबल बतलाती है कि जो फरिश्ते हैं वो अरबों साल पहले रचे गए थे। And in verse 30 the Bible says, और 30 वचन में बाइबल कहती है, God created the earth being frozen. और जो धरती जो थी, जो परमेश्वर ने जिसे रचा था वो जम गई। God created the earth, he then destroyed it, and now it was frozen. परमेश्वर ने जिस धरती को रचा था उसे बर्बाद कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा बसा दिया। And if you want to see, you will get a powerful description in Psalm 104 about the flood. और इसी तरह से अगर आप और जानना चाहते हैं तो भजन संगीता 104 में उस महान बाढ़ के बारे में आप बहुत गहराइयों से जान I am सकोगे। not talking of the flood of Noah. हम नूह के बाढ़ के बारे में बात नहीं कर रहे I'm हैं, talking of a flood that had come even before Adam was made. और हम उस बाढ़ के बारे में बात कर रहे हैं जो आदम के आने से पहले आई थी। I would call it the pre-Adamic flood. और हम ये कहेंगे कि ये आदम के पहले की बाढ़ है। And my dear beloved, और मेरे प्यारो, God is telling you this और प्रभु आपसे कह रहे हैं so that you may never be brought into doubt, तो आप फिर कभी शक में ना जिए, so that you may never be confused, और आप कभी गड़बड़ी में ना आ but you जाएं। will understand the reason why God has created you. तो आप उस कारण को समझिए कि क्यों प्रभु ने आपको बनाया है, Why has he brought this truth to you? और ये सच्चाई वो आपके पास क्यों लाया Why है। does he want that you hear the truth and the truth set you free? वो ये क्यों चाहता है कि इस सच्चाई को आप सुने और ये सच्चाई आपको आजाद करे। Why does God want that you be saved? क्यों प्रभु चाहते हैं कि आप बच जाएं? Because beloved, क्योंकि प्यारो, the Lord wants you to know प्रभु चाहते हैं कि आप ये जाने who is standing against you. कि आपके खिलाफ कौन खड़ा Who है, would not want that you know the only true God? और कौन नहीं चाहता कि वो सिर्फ एक सच्चे परमेश्वर को आप जाने। And that is the teaching that you are getting.
और वही सबक आज आपको मिल रहा है, because there is so much truth in this word. क्योंकि इस वचन में कितना सच है. And as we will go on, और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, and that is why God wants you to know और इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि आप ये बात जान लें, the truth, वो सच्चाई जाने, and the truth is what that will set you free. और वो सच्चाई ही आपको आजाद करेगी. My dear friend, मेरे प्यारे मित्रों, the Bible tells us in the book of Job, और बाइबल हमें अय्यूब की पुस्तक में बतलाती है, chapter 38, अध्याय 38, it says about Lucifer और वो लूसीफर के बारे में बतलाती है that in verse 12 he commanded the morning since the days and caused the day spring to know its place. और इसी तरह से वही हुक्म देता था कि सुबह हो, और सुबह हो जाती थी. Because when he would worship God, क्योंकि जब वो परमेश्वर की आराधना करता, that would be the day, that would be the light. और वही दिन होता और वही उजाला होता. He was in heaven, he was in the midst of God. और वो स्वर्ग में था, परमेश्वर के बीच था. And my dear beloved, और मेरे प्यारे मित्रों, if you will see in the book of Job, अगर आप अय्यूब की पुस्तक में देखेंगे, he has been addressed उससे ये बताया गया है, as O Lucifer, ओ लूसीफर, which means इसका मतलब है light holder. कि तू जो रोशनी को थामे रखता He है, is the one who held the light. और वही रोशनी को थामे रखता है. Why does God want you to know this truth? प्रभु क्यों चाहते हैं कि आप ये सच्चाई को So that जानें, you may not be ignorant of what is against you. ताकि जिसका आप सामना कर रहे हो उसके बारे में आप लापरवाह ना रहो, So that you know what you got to do. ताकि आप ये जान सको कि तुम्हें क्या करना है, Not to glorify the enemy, और महिमा दुश्मन को नहीं देना है, but to make you aware who the enemy is. ताकि आप जान सको कि कौन दुश्मन है आपका. I want to take you to Isaiah 14 verse 12. और हमको यशाया 14-12 वचन में ले जाना The चाहते Bible हैं. says, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? हे लूसीफर, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू तो जाति जाति को हरा देता था. तू कब कैसे काट कर भूमि पर से गिराया गया? One thing you will know, और एक बात आप जानेंगे, that Lucifer was in heaven before God. और लूसीफर जो था वो स्वर्ग में था, परमेश्वर के समक्ष, He had access to God. और वो परमेश्वर के पास पहुंच सकता He था. was not just anyone. वो कोई एवे ही नहीं था, He was Lucifer, who is called the light holder. और वो लूसीफर था जो कि रोशनी थामने वाला कहा जाता था. He was called the son of the morning. और वो सुबह का बेटा कहलाता था. My dear beloved, मेरे प्यारो, this is Lucifer, the angel who was in charge of worship. हम लूसीफर की बात कर रहे हैं जो देख रेख करता था वो आराधना की, जो परमेश्वर के पास पहुंचाता था. My friend, मेरे मित्रों, what happened if he was so elect? और क्या हुआ जब वो इतना चुना हुआ था? Isaiah 14 verse 13 tells us, और यशाया 14-13 वचन कहता है, when you said in your heart जब तूने अपने मन में कहा that I will ascend to heaven कि मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊंगा, and exalt my throne above the stars of God, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा उठाऊंगा, I will also sit upon the mount of the congregation in the sides of the north. और मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा. I will ascend above the heights of the clouds and I will be like the Most High. और मैं मेघों के से भी ऊंचे स्थानों में ऊपर चढ़ा जाऊंगा, और मैं परम प्रधान की तुल्य हो जाऊंगा. My dear friend, मेरे प्यारे मित्रों, the Bible tells us बाइबल हमको बतलाती है, this Lucifer, this worship leader, और ये लूसीफर वो जो आराधना का अगुवा था, he was bloating with pride. और वो जो है फूला नहीं समा रहा था घमंड से, He thought he was almost as good as to be God of this earth. और वो समझता था कि वो तो इस धरती का परमेश्वर बन गया है. He thought of himself that he will become the God of this universe. और वो सोचता था कि इस सृष्टि का वो परमेश्वर बन जाएगा. But I like what verse 15 says. लेकिन मुझे अच्छा लगता है जो 15 वचन कहता है, Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. परंतु तू तो अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा. Where was he brought? उसे कहाँ उतार दिया गया From था? heaven to hell.
और वो स्वर्ग से नरक तक पहुंचा दिया गया। Just because. और इस कारण के लिए, Because pride came in him. क्योंकि घमंड उसके अंदर आ गया। Because he thought he was equal to God. और वो समझता था कि वो परमेश्वर के समान हो गया है। And he thought that he should be above the stars of heaven. और वो सोचता था कि ये जो स्वर्ग के तारे हैं उसके ऊपर वो विराजमान होगा। And he declared that he will make his throne as the Most High. और उसने ये ऐलान कर दिया कि मैं परम प्रधान के ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा। My dear beloved, मेरे प्यारों, that was the reason और यही वजह थी that deceit made Lucifer fall from heaven down to earth. कि धोखेबाजी में ही लूसीफर स्वर्ग से नरक में आ गिरा। If God has already taken care of him, अगर परमेश्वर ने उसे ठिकाने लगा दिया, if God has gotten rid of what was evil in heaven, और इसी तरह से परमेश्वर ने छुटकारा पा लिया जो भी कुछ बुराई थी स्वर्ग में उसके कारण, next week we're going to see something. और अगले हफ्ते हम कुछ देखने वाले हैं। Is he still in hell? क्या वो अभी भी नरक में है, Is he done with? या उसने अपना काम समाप्त कर लिया All है, his powers have been taken? या उसका जितना सामर्थ था उससे ले लिया गया है, Is he now a powerless Lucifer down in hell? और अभी क्या नरक में वो सामर्थहीन लूसीफर बनकर रह रहा है? What is the outcome of this incident? और इस हादसे का परिणाम क्या निकला, What happened? क्या हुआ? We want you to come back next week हम चाहते हैं कि दोबारा अगले हफ्ते आप आइए and let us see. और आइए हम मिलकर देखेंगे, Because God has you here to know the truth of the word. क्योंकि प्रभु इसीलिए आपको यहाँ लाए हैं ताकि परमेश्वर के वचन की सच्चाई को आप जान सकें। And I believe that the truth is going to set you free. और हम विश्वास करते हैं कि जो सच्चाई है वही आपको छुटकारा देगी। As we close today, और आज जिसे हम समाप्ति कर रहे हैं, we want you to pray and ask God, हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगें, Lord, प्रभु in the coming week, as you will give me more knowledge of your word, कि आने वाले हफ्तों में जिससे आपके वचन का और ज्ञान आप हमें देंगे, prepare me तैयार करो मुझे for why you created me. कि क्यों आपने मुझे रचा है, Equip me मुझे तैयार करो for what you would want me to do. कि आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं, Because I believe now क्योंकि अब मैं ये विश्वास करता हूँ I am not here by chance. कि मैं अचानक ही यहाँ पर नहीं आया हूँ, But God, you have a plan for my life. लेकिन परमेश्वर आपने मेरे जीवन के लिए योजना बनाई है। Amen. आमेन।